Refuse what you do not need. Reduce what you do need. Recycle what you consume excess. Recycle what you cannot refuse. Reduce or reuse. And compost the rest. Yeah. Good morning, everyone. Myself, Nisha Verma. I am the moderator of today's session. I am pursuing BSc Maths Honours from Delhi University. I have Ms. Sakshi and Ms. Rashi as my co-hosts. So let's start. Good morning, everyone. My name is Sakshi Singh. I am pursuing graduation in commerce from Delhi University. Hello everyone, I am Rashi Arora, your co-host, and I too am doing graduation in commerce from University of Delhi. Today's webinar has reached you under Project Paryavaran Mitra. This session is being held under the guidance of Mr. Lokesh Parashar, who is serving as the District Coordinator of New Delhi Tourism. He is also an environment enthusiast and is keen to inculcate sustainable habits in all routine activities. This Project Paryavaran Mitra was launched on 7th July 2022. It is an initiative by Delhi government headed by Environment Minister Shri Gopal Rai ji. This is a citizen-based initiative with a motive to aware and motivate common Delhi citizens to be a part of and contribute to a good cause. We have already completed the landmark of planting 40 lakh plus trees in a year. If you also wish to connect with this Garrett Institute, just get a missed call at 844-844-1758. Our topic for today is Kachre Pe Charcha. We are here to discuss an important issue of waste management in the light of sustainability. To enlighten you more on today's session on waste segregation in the light of sustainability, we would like to welcome our special chief guest with us, Ms. Meenakshi Sharma. She is a renowned owner of Use Me Works Foundation. Welcome, Ms. Meenakshi. Thank you, Rashi. That was beautiful introduction. Thank you, everyone. It's absolute pleasure to see so many students joining us Saturday morning. And I'm happy to share my journey with you all. I live in Delhi and I was born and raised in the city. I have... So, Ms. Meenakshi, one thing is, let's be bilingual. क्योंकि यहाँ पे काफी से लोग हैं जो इंग्लिश नहीं प्रेफर करेंगे. So, हम दोनों लैंग्वेज साथ लेके चलते हैं. Yeah. हाँ, हम इंग्लिश रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम पूरा हिंदी भी रख सकते हैं. Firstly, I would request everyone कि आप सब please अपने आप को mute पे डाल दें, because I can hear a lot of disturbance. If everybody can be muted, please. हाँ जी. So I see, I think काफी mix है हमारी audience. इसमें सिर्फ students नहीं है, इसमें I think different background से यहाँ पर आज participants हैं. तो अगर कुछ ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ आता है या फिर आप चाहेंगे कि मैं उस चीज को दोबारा explain करूँ, तो please आप you can write it in the chat box or raise a hand. तो मेरी journey जो है, it's been 10 years. I am working in textile industry in the area of sustainability. जिसमें हम लोग टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकल करते हैं, उसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और ये मैं अकेले नहीं करती. आई वर्क विद क्लस्टर ऑफ वुमेन इन छतरपुर. हमने उनको ट्रेन किया है और जो टेक्सटाइल वेस्ट हम फैक्ट्रीज और बुटीक से कलेक्ट करते हैं, उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं दैट आल्सो सर्व एज प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स. सो प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स से मेरा मतलब है कि जो चीज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है, हमने उसको इरेडिकेट कर दिया उन प्रोडक्ट्स को बना के, जो कि ऑलरेडी अपसाइकल्ड है, जो ऑलरेडी एक फैब्रिक का टेक्सटाइल वेस्ट रिमूव करते हैं. वी आर कॉल्ड यूज मी वर्क्स. आई पिक्ड इट अप फ्रॉम द डस्टबिन. यूज मी बोलता है हर डस्टबिन, हमने यूज कर लिया. यूज मी वर्क्स इज द ब्रांड नेम एंड यू कैन सर्च अबाउट अस, यू कैन नो मोर, यू कैन जॉइन अस ऑल्सो. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर enthusiastic people to work with us because ये कोई एक का काम नहीं है, इट्स ओनली कलेक्टिव. सब जब मिलके करेंगे तो ही हम लोग एक इम्पैक्ट ला सकते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट सेशन विच इज अराउंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आप एक इंडिविजुअल लेवल पे, अगर आप भी एक कंसर्न नागरिक है जिसको इस बात से प्रॉब्लम है कि हमारी हवा साफ क्यों नहीं है, हमारा पानी क्यों साफ नहीं आता, हमारे आसपास गंदगी क्यों है, और अगर आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने से पहले अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज इट दैट आई डू,
तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। एट एन इंडिविजुअल लेवल आप कैसे एक वेस्ट फ्री या फिर लो वेस्ट लाइफ लीड कर सकते हैं और आप एनवायरनमेंट को कम बर्डन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में कवर होंगी। वी विल ऑल्सो टेक क्वेश्चंस। आई थिंक Isha will help me with that. After the end of the session, we will entertain all the questions. आपको जो भी जानना है, जो भी डाउट है, सेशन के दौरान मैं चाहूंगी कि आप उस टाइम पे उसको नोट कर लीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन we can listen to all the questions and then we can find an answer collectively. ठीक है? और before the session मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी कि कैसे आज मैं इस पॉइंट पे पहुंची जहां मैं एक रिसाइकलिंग सेंटर चलाती हूँ। We're almost a group of 30 women. We are recycling 200 kgs of textile waste every month. तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। जो सबसे पुरानी जो मेरी ओल्डेस्ट मेमोरी है, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था एज अ वेस्ट से, वो तब हुआ था जब वी वर गोइंग ऑन अ हॉलीडे। हम सिटी के बाहर जा रहे थे और मेरी नजर एक पहाड़ पे पड़ी। किस किसने देखा है वो पहाड़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ? यू कैन रेज योर हैंड अगर आपने सबने देखा होगा ये वाला पहाड़ जो दिल्ली में रहते हैं। तो ये वो प्लीजिंग और ब्यूटीफुल पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बिकॉज वी कम फ्रॉम माउंटेन्स, माय रूट्स आर फ्रॉम जम्मू, तो मैं आई एम नेचर एंथुसियास्ट। अगर कोई पेरेंट्स अगर बोलते हैं तो ट्यूशन की आप मेरे में सजेस्ट करें। पर एक चीज पूछ लीजिए, काफी सारे आई थिंक वी आर रिसीविंग सम क्वेश्चंस, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको प्लीज एंड ऑफ द सेशन के लिए रखें। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन कि मैंने वो पहाड़ देखा और मैं अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो गई कि यहाँ हम बिल्कुल पहाड़ के पास रहते हैं और आप मुझे कभी लेके नहीं आए। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि ये हमारा वो जम्मू वाला पहाड़ नहीं है, ये एक्चुअली में कूड़े का पहाड़ है। और उस टाइम पे बहुत गुस्सा हो गई थी और मुझे समझ नहीं आया था कि हमारा कूड़ा जो हमारे घरों में जनरेट होता है तो वो यहाँ पे पहाड़ पे कैसे पहुंच रहा है और ये सब। बट जब मैं बड़ी हुई और आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, फिर हमने कॉलेज के लिए आई वांटेड टू डू फैशन, वी वेंट टू फैक्ट्रीज। वहां से जब टेक्सटाइल वेस्ट निकल रहा था और बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल भी था, तो वो यही बोलते थे कि इट इज गोइंग टू द लैंडफिल। फिर जब मैंने उन दोनों चीजों को कनेक्ट किया, देन आई रियलाइज्ड कि ओके, ये वही पहाड़ है जो कि अब और बड़ा हो गया है, और जो हमारा जो चीज जो हम ठीक से नहीं यूटिलाइज कर पाते, या फिर वो छोड़ देते हैं, या फिर वो डैमेज्ड है या किसी काम की नहीं है, या हम उसका आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम वो एक डेडिकेटेड स्पेस पे डंप कर देते हैं, विच वी हैव रन आउट ऑफ एज अ सिटी। अब हमारे पास कोई लैंडफिल स्पेस नहीं है। 2007 में हमारी लैंडफिल्स की कैपेसिटी खत्म हो गई थी, विच वॉज 16 years बैक। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे को हमेशा से बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि मेरी हवा गंदी है, we live in a dirty city, जहाँ पे इतना सारा आसपास गार्बेज रहता है, वाटर इज नॉट क्लीन। तो देन आई रियलाइज कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू, आई वाज एट द एंड ऑफ माई कॉलेज, मुझे यही रियलाइज हुआ कि मैं भी इसी का हिस्सा बनने वाली हूँ। मैं भी इसी इंडस्ट्री, जो फैशन इंडस्ट्री है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें पानी गंदा होता है, कलर्स आते हैं, बहुत गंदी डाइज होती है, कपड़ा हमारा इतना ज्यादा वेस्ट होता है साल भर में थैंक्स टू फास्ट फैशन, वो अगेन मैं उसी का ही पार्ट बनने वाली थी, राइट? तो मुझे ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं थी, एंड आई मेड अ डिसीजन कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनूंगी। मैं जो भी प्रोफेशन लूंगी, इट शुड बी इन बैलेंस विद माय सराउंडिंग्स, माय नेचर। और बर्डन को, एनवायरनमेंट को बर्डन करके मुझे अपना जो अर्निंग है वो नहीं चाहिए। आई वांटेड टू बी एट पीस विद माय लिविंग, माय लाइफस्टाइल आल्सो। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल एस्टैब्लिश अ ब्रांड which is into recycling of textile waste. I am talking about 2011. उस टाइम पे इतनी ब्रांड्स नहीं होती थी, सस्टेनेबिलिटी टॉक भी इतना नहीं था। तो मैं पहले, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे अपना ब्रांड शुरू करना है। मैं पहले वेंचर्स देखने लगी, पर उस टाइम पे मुझे इतने ऑप्शंस नहीं मिले। आज के टाइम पे जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट में भी, प्रॉफिटेबल में भी, तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट उस टाइम पे नहीं थे, और जो मेरी जितनी एक्सेसिबिलिटी थी मुझे नहीं मिला। देन आई डिसाइडेड कि आई विल ओनली स्टार्ट
आई स्टार्टेड एट एन इंडिविजुअल लेवल. फिर मैं उस टाइम पे खुद ही काम करती थी, अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी. आई वर्कड एज एन आर्टिस्ट एंड इन 2017 आई डिसाइडेड दैट आई नीड अ बिगर टीम. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड विद अ वुमेन क्लस्टर. कि छतरपुर में जो ये एक एरिया है, एक अर्बन विलेज है आपसे बोलोगे उस सेटअप को, जहाँ पे हमने औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया और हमने फिर को आगे टेक्सटाइल में एक रिसाइकलिंग सेंटर में एस्टैब्लिश किया, जहाँ हम अभी भी आज भी काम कर रहे हैं. और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ब्रांड और बीइंग अ स्मॉल ग्रुप हम इतना चेंज नहीं ला सकते. अगर हर कोई एट एन इंडिविजुअल लेवल छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे काम करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. तो उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए वी टेक वर्कशॉप्स ऑल्सो. और आज का वो सेशन इसी का ही पार्ट है, जहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी लर्निंग्स हैं, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से अगर आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, अपनी कंजम्पशन पैटर्न में चेंज लाएं तो आप अपनी लाइफ को भी एक बैलेंस में ला सकते हैं नेचर के साथ. एंड देन आई थिंक वी कैन क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट. वी कैन इवन पुश गवर्नमेंट टू वर्क मोर, बिकॉज हम नागरिक जो है हम ज्यादा जागरूक होंगे तो गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है. जब हम सही चीजों के लिए क्वेश्चन करेंगे और डिमांड्स करेंगे तो उनको वो डिलीवर करना ही पड़ेगा. बट सबसे पहला इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट होता है, विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, दिस इज इट. आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं. वी कैन हैव 2-3 क्वेश्चंस फॉर राइट नाउ. इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर, कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं. फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे. मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये कूड़े के पहाड़ हैं, बहुत ही इजीली हट सकते हैं. गवर्नमेंट को या तो पता नहीं है या गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा. महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जैसे ही आप बिजली बना रहे, बिजली से इन्वायरमेंट और खराब होगा क्योंकि उससे धुआं निकलेगा, कुछ बैक्टीरिया आते हैं. मैम, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ बैक्टीरिया छिड़के, वो पहाड़ अपने आप खत्म हो जाएंगे. और जहाँ जो चीज 10 करोड़ में होगी वो सिर्फ 1 करोड़ में हो जाएगी. 9 करोड़ पे कितना करोड़ बच गए वहां महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के. वो इजीली हट जाएगी. गवर्नमेंट चाहती नहीं है हटे. मैं आपको और कि एक्चुअली जो आज का सेशन है कि गवर्नमेंट को डिस्कस करने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि हम क्या कर सकते हैं. तो हम आज आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि अगर हम उसी पे ही फोकस रहने दें तो वो बहुत अच्छा होगा कि हम हम इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को सजेशन देंगे ना मैम, सजेशन देंगे कि ऐसा करो. मेरे पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, तो अगर आपके पास है तो आप प्लीज वहाँ पे जाके तो मैम मैंने मेल वगैरह किए हैं उनको, और जो कर सकता था मैम मैंने किया. हम सब ये भी तो कर सकते हैं मैम. अगर रास्ता वो हो सकता है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए. हम तो रास्ता निकालने से बिलीव रखते हैं, ना कि तरीके पे. मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया इजीली तरीका है. सत्यमेव जयते में भी बताया था मैम कि वो कूड़े का पहाड़ कैसे हट सकते हैं. और इजीली कई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो कूड़े के पहाड़ हटे. हालांकि ऐसी कंपनियां भी जो पब्लिक से कूड़ा ले जाके अपने आप मैनेजमेंट कर सकती हैं, वो जैसे आप बता रहे हो ना. और गवर्नमेंट कह रही है कूड़ा नहीं है. मैंने आपका सवाल ले लिया है. मैं बोलूंगी कि आप पहले पूरा प्रेजेंटेशन देखें. मुझे लगता है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा. सबसे बड़ा सोल्यूशन प्रॉब्लम का होता है कि आप प्रॉब्लम को आने ही ना दें. तो हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रॉब्लम आ गई उसके बाद क्या होगा, वो वहीं से मैम स्टार्ट होगा ना. मैं वहीं जैसे हम पहले लैंड खत्म हो चुकी है, पहले लैंड को क्लियर करेंगे और आगे से चाहते कि ना हो, मतलब जो हो चुकी समस्या उसको तो ठीक करेंगे ना मैम. पहाड़ को जहाँ पे आग लग जाती है, धुआं हो जाता है, वो भी तो एक समस्या है ना मैम. मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर सकते हैं कि ये समस्या एट द वेरी फर्स्ट प्लेस खड़ी ही ना हो. तो मैम पहले समस्या को पहले, अब वो भी तो पोल्यूशन कर रहा है ना मैम पहाड़. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी हम नीचे अब छोटे स्तर पे करें, जो बड़ा स्तर पोल्यूशन कर रहा है उसको कैसे ठीक करें. थैंक यू वेरी मच. Nisha, please put everybody on mute and we will start with the presentation. I just want to share one very small thing. Okay, sure. I am Sangeeta Tayal from EcoWings, and Delhi ki pehli diwar with plastic bottle, which is called EcoBricks, is made by us with MCD. So we are working with MCD South Zone. So मैं जो सर का जवाब देना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में, गवर्नमेंट जो कर रही है करे, पर हमने अपने लेवल पे इको ब्रिक्स बनवा रहे हैं, जो अब तक हम नियरली 2300 बनवा चुके हैं, जिसके अगेंस्ट में हम सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं अपने हाउस होल्ड वर्कर्स को. एंड वी आर वर्किंग ऑल ओवर इंडिया. सो राइट नाउ दिल्ली में एवरीवेयर. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बॉटल रखें, उसमें प्लास्टिक जितना भी घर का निकलता है, आप इकोविंग्स को ट्विटर पे चेक कर सकते हैं, और आप उसमें भरवाते रहें. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन बनती है कि हम अपना प्लास्टिक लैंडफिल पे जाने से रोक दें.
सेकेंडली, आप कंपोस्ट बना सकते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, इज राइट, बट हम सबकी ड्यूटी बनती है. I will share little pictures with you, and that's a really great initiative. I don't know your name. I'm really sorry I joined late. So may I know your name, please? मीनाक्षी. राशि. मीनाक्षी Okay. मीनाक्षी शर्मा. मीनाक्षी जी, आप प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए. I'll save it. And you are doing the great job. So Eco Wings is working against segregation as well as management, and wherever you will want to call us for the the workshop, we will come, and जो भी बनाएगा प्लास्टिक से इको ब्रिक्स, हम उनको फ्री में 4 पीस का सैनिटरी नैपकिन के पैकेट देते हैं. आप दिल्ली की पहली दीवार आप चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म. आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर. Okay. Thank you very much. Thank you everyone. Without any delay, we will start the session. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सवाल हैं उनका काफी जवाब मिलेंगे हमें इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, और बाय द एंड ऑफ द सेशन वी कैन अगेन ओपन द Q&A राउंड एंड देन वी कैन डिस्कस. लेट्स गेट स्टार्ट. आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन. क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. यस. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आज का सेशन इस बारे में है कि हम एट एन इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज जब प्रॉब्लम घर में होती है तो सबसे बड़ा समाधान और सबसे बेस्ट समाधान वही होता है कि उसको फर्स्ट लेवल पे ही टैकल किया जाए, बिकॉज जैसे जैसे वो आगे जाती है वो और बड़ी होती जाती है और उसको उतना ही ज्यादा मुश्किल है उसको हैंडल करना. तो हम आज समझेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अकर होने से रोक सकते हैं, कि वो प्रॉब्लम ही ना बने. कैसे हम एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बना सकते हैं कि हम उसको और बेटर तरीके से हैंडल कर सकें. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है. हम हमेशा सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम हर जगह पे सुन रहे होते हैं, मगर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस आती हैं इसकी. तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? सस्टेनेबिलिटी अगर आप अपने आप में लिटरल टर्म समझेंगे तो है जो चीज सस्टेन कर पाए. सस्टेन का मतलब जो है जो अपने आप को जीवित, अपने आप को कंटिन्यू रख पाए, वो सस्टेनेबिलिटी होता है. और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता है जब हमारा वातावरण जो आज है वही 20 साल बाद रहे, उसमें जो रिसोर्सेज हैं वही 20 साल बाद रहे, वही 50 साल बाद रहे और वही 100 साल बाद रहे. अगर आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको जानकारी है कि जी आज तो है मगर 20 साल बाद नहीं होगा, मगर 30 साल बाद, मगर 100 साल बाद नहीं होगा, तो वो सस्टेनेबल नहीं है. आप एक सिंपल सा सवाल पूछें अपने किसी भी तरीके के, चाहे आप पेपर यूज कर रहे हैं, चाहे आप पानी यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई खाने की चीज, अगर वो इस तरीके से उत्पादन उसका हो रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके का डैमेज कर रही है, अगर रिप्लेनिश नहीं हो रही है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है. अगर हम पेपर इस्तेमाल करे जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं तो इवेंचुअली कोई पेड़ नहीं बचेंगे. अगर हम कोल इस्तेमाल करे जा रहे हैं, क्योंकि कोल जो है हमारा फॉसिल फ्यूल है, उसको मिलियंस ऑफ इयर्स में बनता है, और जिस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खनिज पदार्थ अगर हम रोज निकाले जा रहे हैं, तो हम भी जानते हैं कि अगले 10, 20, 30 साल में मैक्सिमम वो सब खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद क्या? तो वो एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है. अगर मुझे पता है कि मेरे पास इतना है और मैं इतना यूज करना चाहती हूँ उसको रोजाना में, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि जी मैं 1 साल बाद, मैं 10 साल बाद क्या करूंगी, क्योंकि वो चीजें तो नहीं है. तो अगर ऐसा है तो वो सस्टेनेबल नहीं है तरीका, जो कि मैक्सिमम हमारे आज की लाइफस्टाइल के लिए जाता है. प्लास्टिक अगर आप देखें तो वो पेट्रोलियम से निकलता है, और पेट्रोलियम हमारा नेचुरल रिसोर्स है जो लिमिटेड है. तो उसके बाद क्या? तो ये सारे सवाल हमें पूछने चाहिए कि मे भी हो सकता है वो चीज बड़ी सस्ती हो, कि वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए में आ रही है और हम उसको एंडलेसली यूज करे जा रहे हैं. मगर आप कभी अगर उसको सोचे तो आप उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट समझिए कितना है. मे बी प्लास्टिक का थैला हमें 1 रुपए में मिल जाता है, मगर वो 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक पड़ा हुआ है, तो उसका एनवायरमेंटल डैमेज कितना बड़ा हो गया, आप ये सोचिए. तो देखते हैं कि क्यों हमारे साथ ये सिचुएशन होती है. हम मार्केट में जाते हैं, हमें ग्रोसरीज चाहिए, कुकीज, वेजिटेबल्स, शॉपिंग मटेरियल होता है, हमें रोजाना के लिए हमें ये सब चाहिए. तो ये सब हम जब लेके आते हैं तो ये तो हम यूज कर लेते हैं, पर उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है सामान यूज करने के बाद? पैकेजिंग. हमने बिस्किट्स खाया, खा लिया, पैकेजिंग बच. आटा इस्तेमाल किया, पैकेजिंग बच गई. तो वो पैकेजिंग कहाँ जाती है? वो एक कूड़े के डिब्बे में जाती है, और जिससे कि हमारी ये लैंडफिल्स क्रिएट हो रही हैं. तो इससे क्या नुकसान होता है? हमारा प्लैनेट इस पैटर्न से चोक हो रहा है. सारी पैकेजिंग, सारा डंप मटेरियल जो है
जो लैंडफिल्स में कलेक्ट होता है, आवर प्लैनेट इज चोकिंग विद दैट. इट्स ऑल्सो हार्मिंग द इनोसेंट लाइव्स. एनिमल्स आर देयर जो कि ये सब नहीं समझते, ना ही उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उनमें, एंड दे सफर द मोस्ट. व्हाट इज द करंट सिचुएशन लाइक? अभी हम 10,000 टन वेस्ट जनरेट करते हैं दिल्ली में, और हमारी जो, जैसे कि मैंने शेयर किया, हमारी जो लैंडफिल्स, जो हमारा जो एरिया है डेडिकेटेड ये डंप करने के लिए, वो 2008 में ही खत्म हो गया था. और 0.6 टन्स ऑफ प्लास्टिक ओशियंस में जाता है एन्युअली. इतना सारा प्लास्टिक हमारे यहाँ से, इंडिया से जाता है. एंड अदर थिंग्स दैट वी आर हैम्पर्ड अपॉन, हमारी हेल्थ इससे इफेक्ट हो रही है, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर ऑर्गन्स. दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हमारा 25 से 28% दिल्ली पोल्यूशन एक्चुअली गार्बेज बर्निंग से आता है. हम ये भी समझेंगे कि गार्बेज बर्न क्यों होता है, और इसके अलावा हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं. इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड्स, बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, पॉल्यूटेंट्स, जो हमें एक्चुअली में हार्म करती हैं. तो इससे किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ इसके बारे में, या करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आप देखें कि आपके कूड़े के डिब्बे में है क्या. तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ योर डस्टबिन. जो हमारे घरों से कूड़ा निकलता है उसमें है क्या, बिफोर वी डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम. और अगर हम किसी और को भी बोले कि आपको इसके बारे में कुछ करना है, तो पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा कूड़ा. तो लेट्स अंडरस्टैंड आवर वेस्ट. अभी हमारा कूड़ा कुछ इस तरीके से दिख, राइट? उसमें सब कुछ मिक्स्ड है. टेक अवे बॉक्सेस, टी बैग्स, मेडिसिन, वैक्स, ड्राइड फ्लावर्स, किचन वेस्ट, पैम्फलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एल्यूमिनियम, देयर इज एवरीथिंग. इट इज लाइक दिस. जब हम इसको सॉर्ट करना शुरू करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, राइट? अभी अगर मैं फर्स्ट देखती हूँ, तो ये जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ है, ये सब मेरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो मेरा किचन वेस्ट है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो वातावरण में पड़ा हुआ सड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है इवेंचुअली, राइट? तो जितना भी हमारा किचन का वेस्ट है, और पत्तियां हैं, कॉफी का फूल, पत्ती, ये सब सॉडस्ट, ये सड़ता है. उसके बाद आ गया हमारा ब्लू वेस्ट, विच इज आर Amazon बॉक्सेस. ये हमारे सब रिसाइक्लेबल्स हैं. बियर कैंस, बॉटल्स, न्यूज़पेपर्स अगर हम सॉर्ट करना चाहेंगे, तो इसमें से अब हम जब ब्लू वाला निकालेंगे, तो उसमें सारी ऐसी चीजें आ गई जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जो हम रिसाइकलिंग स्पेसेस में दे सकते हैं. तो ये ब्लू वाला भी हट जाता है. उसके बाद हमारा मेडिकल वेस्ट होता है, और ये दिस इज हजार्डस वेस्ट. अगर हम उसको करते हैं तो उसमें से यू विल सी कि बियर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड मेडिकल बैटरीज, ये सारा हमारा हजार्डस वेस्ट है. ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है. तो इस तरीके से हमारा सेग्रीगेशन बनता है. Our waste can be actually divided into organic, recyclables, toxic and rejects. अगर आप अपने वेस्ट को डिवाइड करेंगे तो इन 4 कैटेगरी में आपका कूड़ा निकलेगा, राइट? अगर आपने 4 डब्बे बनाए तो इस तरीके से आपका कूड़ा दिखेगा. ऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल आल्सो शेयर द प्रेजेंटेशन इफ यू लाइक. तो इसमें सारा आपका किचन का कूड़ा आ जाता है. फिर आप जो है रिसाइक्लेबल्स अगर आप करेंगे तो वो सारा आपका सेकंड बॉक्स में है. टेक अवे बॉक्सेस और ट्यूब्स और कॉस्मेटिक्स, एल्यूमिनियम, पेपर, ग्लास, ये सब रिसाइक्लेबल है. फिर जो थोड़ा सा होता है वो टॉक्सिक में आता है, जो रोजाना में नहीं निकलता, वो कभी कभी निकलता है. बैटरीज, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल, ये बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स. और फिर जो होता है वो आपका रिजेक्ट्स होते हैं, जो किसी के भी हाथ में नहीं आना चाहिए. इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इट शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू एनीवन. तो इस तरीके से ये हमारा सेग्रीगेशन है. क्या आप थोड़ा बेटर समझ पा रहे हैं अपने डस्टबिन को जब हमने सेग्रीगेट कर दिया? यस मैम. ठीक है. तो अब इसका रेशो समझते हैं. तो आप देखिए, अगर आप इसका रेशो समझेंगे तो 60% इज आर ऑर्गेनिक वेस्ट. Out of the 100, 60 is our organic waste, which is the kitchen ka waste, which is biodegradable. Isn't that a great thing? Being a developing country, हमारा 60% कूड़ा एक्चुअली में हमारी रसोई का आ रहा है. हम इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं प्लास्टिक के लिए? 60% तो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है ना. ऑर्गेनिक वेस्ट तो
न्यूट्रिएंट से भरा हुआ एक बहुत अच्छा मटेरियल है जिसको अगर ट्रीट किया जाए तो हमें खाद मिल सकती है। रिजेक्ट सिर्फ 10% है, टॉक्सिक सिर्फ 10% है, और रिसाइक्लेबल इज 20%। रिसाइक्लेबल इज प्योर मनी। रिसाइकल करके इट्स वी कैन क्रिएट सम रेवेन्यू, सम सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने वेस्ट को समझें तो। उसके बाद जब हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो हमने उसको और अच्छे से दिस क्रिएटिव इज थ्रू डेली डंप एंड एज यू कैन सी उन्होंने फर्दर इसको और इलैबोरेट कर दिया है। तो हम किसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट है विच इज ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज 60%, ये कॉम्पोस्ट किया जा सकता है, राइट? ये सब कॉम्पोस्ट किया जा सकता है एट सोर्स लेवल। फिर उसके बाद सेकेंड हम जो करेंगे वो हमारा रिसाइक्लेबल जो 20% है ये रिसाइकल किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है। थर्ड जो है डिस्पोज सेफली। जो ये हमारा टॉक्सिक वेस्ट है ये जो होता है ये हमें सही एजेंसीज के पास पहुंचाना होता है। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, ना ही वेस्ट पिकर इसके बारे में कुछ कर सकता है। तो इसको हमें राइट प्लेसेस में पहुंचाना होता है, इनके रिसाइकलिंग सेंटर्स पे पहुंचाना होता है। जो मेडिकल वेस्ट होता है वो एक हॉस्पिटल में जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग स्पेसेस होती हैं उनकी। और बाकी जो हमारा लास्ट जो 10% है एक्चुअल में सिर्फ ये होता है जो हमें हमारा जो वेस्ट पिकर ऑन डेली बेसिस आता है उसको देना होता है, जिसके लिए हमें हमारी लैंडफिल्स का मान हुआ। हम आज की डेट में लैंडफिल्स में सब कुछ भेज देते हैं, मगर ओरिजिनली अगर आप समझेंगे तो लैंडफिल्स इन सब कूड़ों के लिए बनाई ही नहीं गई थी। लैंडफिल्स बनाई गई थी सिर्फ इस 10% के लिए। ये हमारा मिसमैनेजमेंट है कि 10 की जगह पूरा का पूरा 100% वहां पे जा रहा है, क्योंकि हम अपने कूड़े को नहीं हैंडल कर पाते। हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी और की जिम्मेदारी है, इसलिए लैंडफिल्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। लैंडफिल्स इज नथिंग, इट्स अ पीस ऑफ लैंड, इट्स अ मदर लैंड जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं स्पेस को, और वहां 10% की जगह हम एक्चुअली में 100% भेज देते हैं, और जो कि अब सिचुएशन बहुत वर्स हो गई है। बट नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट, नाउ व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो लेट्स अंडरस्टैंड जो हमारा 60% कूड़ा है वो बायोडिग्रेडेबल है, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट सॉइल and it can be composted either at home. I do it at home or you can do it at community level. आप अपने RWA से बात कर सकते हैं. There are plenty of groups and people. कचरे पे चर्चा, this group is specially made for that, कि कैसे हम आपको help कर सकते हैं. How you can install community composters or a DIY composter at your home, और आप अपने किचन के कूड़े से फ्रेश खाद निकाल सकते हैं. That's how I started my kitchen garden, जिसमें मेरे पास अब कम से कम 100-150 पौधे हैं. मेरे पास कोई लैंड नहीं है, but I'm using my balconies. So this is how the compost looks. It is an organic matter, which is dark, crumbly. It smells like earth. There is nothing more satisfying than actually creating compost out of your own kitchen waste. इससे बड़ा recycling कुछ है ही नहीं, जिसमें आप अपने किचन के कूड़े से एक फ्रेश अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, और ये आपके सॉइल को, आपके प्लांट्स को नर्चर करता है. अगर आपको वो भी नहीं करना तो इट कैन बी अ ग्रेट गिफ्ट फॉर योर पीपल. आई ऑलवेज गिफ्ट टू माय लव्ड वंस. जब वो आते हैं मैं उन्हें कॉम्पोस्ट देती हूँ. नो फैंसी गिफ्ट्स एक्सचेंज. तो कॉम्पोस्ट हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल है इन मेनी वेज. कैसे? कि 60% लेस कूड़ा, सीधा 100 में से 60% आप कर सकते हैं अगर आप कॉम्पोस्ट कर रहे हैं. कॉम्पोस्टिंग करने से हमारे सीधा 350 लेस प्लास्टिक बैग्स होंगे साल में, क्योंकि हम वो कूड़ा भी प्लास्टिक में देते हैं. मीथेन आपकी जो लैंडफिल्स में आग लग रही होती है वो एक्चुअली में प्लास्टिक से नहीं है, उसका एक्चुअल सोर्स यही कूड़ा है. क्योंकि लैंडफिल्स में आप जब क्रॉस करेंगे आपने देखा होगा वहां धुआं निकल रहा है, वहां आग निकल रही है. वो क्यों है? क्यों जल रही है वो चीजें? क्योंकि जो हमारा किचन का कूड़ा वहां जाता है, जब वो सड़ता है उसमें मिथेन निकलती है. फ्लेमेबल गैस होती है मिथेन, और आसपास जब प्लास्टिक और सारा रिसाइक्लेबल कूड़ा है तो वो आग पकड़ लेता है और वो एक बॉम्ब की तरह बन जाता है, राइट? तो वो जलने लगता है. तो यू कैन सेव दैट एंड बेटर रिकवरी ऑफ रिसाइक्लेबल्स. दिस इज प्योर मनी. जब रिसाइक्लेबल जो मटेरियल रिसाइकल होता है तो वी कैन रिकवर रेवेन्यूज, we can generate employment,
And imagine for a person to go to start its day with the garbage. Imagine हम अपना कूड़ा नहीं छूना चाह रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वेस्ट पिकर्स डे आफ्टर डे हमारे कूड़े को सेग्रीगेट करें, उसमें हाथ डालें, उसको हटाएं, उसको सेग्रीगेट करें और उसको ट्रीट करें. I don't think anybody deserves a life like that. It can create so much wellness अगर हम अपने कूड़े को segregate करें at the very first place. It is good for environment. It nourishes the earth. So compost, मुझे लगता है it is actually a blessing if everybody, and it is very easy. It's been 4 years I'm doing it and मेरा रोजाना में मुश्किल से 5 मिनट जाता है इसमें कुछ भी नहीं करना होता. There are plenty of videos. We can also arrange a demo, whosoever is interested later on. So there are furthermore benefits. If you're still not convinced, और भी benefits हैं इसके, तो आप देख सकते हैं कि I would say कि आप खुद से पढ़ें इसमें जो लिखा हुआ है और आप समझे कि कैसे कॉम्पोस्टिंग एक मात्र, अगर हम कॉम्पोस्टिंग से हाथ जोड़ लें तो कितना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. क्योंकि सबसे बड़ा रीजन कि हमारे फैसिलिटीज भी उसको ट्रीट नहीं कर पाती हैं क्योंकि हमने अपना गीला कूड़ा उसमें मिक्स कर दिया होता है, तो गीला हो जाता है, उसमें सारा सन जाता है, तो उसके बाद उसको अलग करना, साफ करना और फैसिलिटीज में उसको ट्रीट करने के लिए भेजना भी अलग मुश्किल होता है. तो अगर आपने अपने घर में अलग भी रख दिया और आपने गीला कूड़ा अलग दिया और आपने रिसाइक्लेबल्स अलग दिए, वेस्ट वो अलग दिए, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस है वो कुछ बेटर कर पाएंगी. बट सबसे पहला काम तो सेग्रीगेशन का ही है. आप इमेजिन करिए एक प्लास्टिक जो गीला हो गया, जो किसी चीज में सन गया है, वो कैसे ट्रीट होगा. आप उसे रिसाइकलिंग के लिए नहीं बेच सकते अगर वो गीला है. इट हैज टू बी ड्राई, इट हैज टू बी क्लीन. तो व्हाट इज कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग एक्चुअली में 4 भाग होते हैं इसके, जिसमें इट इज लाइक एनी एक्सपेरिमेंट जो एक लेबोरेटरी में होता है. इट इज लाइक अ रेसिपी. जैसे कि अगर आप कुछ बनाते हैं, अगर कुछ खाना बना रहे हैं तो उसमें इतना पानी आएगा, इतनी ये इंग्रेडिएंट आएगा, इतना नमक, उतना वो, तभी जाके वो बनता है, राइट? तभी उसमें टेस्ट आता है. तो कॉम्पोस्ट भी एक उसी तरीके का मटेरियल है. जब उसको वो 4 चीजें चाहिए जो वो उसको मिलती हैं तभी फ्रेश खाद बन पाती है. तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम कंपाउंड समझते हैं तो इसमें नाइट्रोजन होता है. साइंस स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. मैं साइंस स्टूडेंट नहीं रही हूँ, मैं भी समझ पाती हूँ, ऐसा नहीं है. नाइट्रोजन, कार्बन, मॉइस्चर विच इज वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये 4 चीजें अगर आपको खाद बनानी है तो आपको चाहिए ही चाहिए. नाइट्रोजन आपका सारा किचन का वेस्ट है. कार्बन आपका सारा ब्राउन वेस्ट है, जैसे कि आपका नारियल की छाल, सूखी पत्तियां, सूखे फूल, श्रेडेड पेपर, सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है, मिट्टी, ये सब आपका ब्राउन वेस्ट है. तो जब आप किचन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट अच्छे से मिक्स करते हैं तो आपकी खाद बनती है. ऑक्सीजन जो है आपको अलग से नहीं देनी है, हमारी हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन है. तो आपको एक आउटलेट क्रिएट करना है आपके कंटेनर में जिससे ऑक्सीजन उसको मिलती रहे. उसमें छेद होना चाहिए, आप जिस भी कंटेनर में जाए, कि हवा जानी चाहिए, तो वो खाद बन पाएगी. तो और मॉइस्चर हमारे किचन वेस्ट में ऑलरेडी होता है. अगर आप उसको देखेंगे तो हमारे जो छिलके और ये सब निकलता है, इसमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है. तो दैट विल डू फॉर द मॉइस्चर पार्ट. ये इस तरीके के कंटेनर्स जो है आप कर सकते हैं. आप कोई जरूरी नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. आप कोई भी पुराना कंटेनर ले सकते हैं, घड़े में कर सकते हैं. अगर आपको मार्केट में अवेलेबल खंबा लेने हैं आप वो भी ले सकते हैं. इट्स अप टू यू, बट देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. ये सब मटेरियल्स आपको चाहिए टू स्टार्ट विद. आप जो भी कंटेनर लें आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें छेद, आपको उसके साइड वाला जो एरिया है वहां पे छोटे छोटे छेद करने हैं जिसमें से हवा जा सके. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आप शुरू करेंगे तो आपका किचन का वेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा. फिर जब वो धीरे धीरे बनने लगती है तो वो सेमी डिकम्पोज होकर ऐसा दिखेगा, और जब वो पूरी तरह बन जाएगी तो वो थर्ड में जो आपको एकदम फाइन ग्रैन्यूल दिख रहा है वैसा आपका धीरे धीरे कॉम्पोस्ट दिख जाएगा. एंड दिस इज लाइक अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है. और ब्रेक डाउन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बैक्टीरिया इस पे काम करते हैं. तो नाउ वी कैन सी वंस वी स्टार्ट डूइंग कॉम्पोस्टिंग, हमारा
60% waste जो है, which is our biodegradable organic matter, that has been treated. Now, what can we do with the toxic? This needs to be handled carefully. All the bulbs and batteries, leads and mercury, they are very harmful chemicals in this. So, ये आपको waste picker को नहीं देना होता. This needs to be treated carefully and there are proper centers. जो medicines होते हैं, you can go and give it to the nearest hospitals. जहाँ पर वो incinerate किया जाता है, उनको जलाया जाता है. This is not supposed to reach a landfill जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं. अगर उनके हाथ में लगता है कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है तो दिस इज गोइंग टू रियली हार्म देम. तो मेक श्योर कि आप इस तरीके की चीजें अपने कूड़े के डिब्बे में ना डालें. आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ नमोई वेस्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो आपका जो है ये हमने साइड में लिस्ट भी बनाई है जो आप इनको अपना सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इंस्टेड ऑफ डंपिंग इट आप इनको दे सकते हैं. इनमें से बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप उन्हें कनेक्ट करें, वन स्टेप ग्रीनर इज वन, जिनको जो आपके घर तक आके आपका मटेरियल कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं. दे हैव वीकली कलेक्शन. उसके बाद है हमारा रिजेक्ट्स. एक्चुअली रिजेक्ट्स वो वाला पार्ट है जो आपको आपके वेस्ट पिकर को देना होता है, जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जो और किसी एजेंसी में नहीं जा सकता ट्रीटिंग के लिए. ये वाला आपको एक सिर्फ पार्ट है जो आपको एक्चुअल में वेस्ट पिकर को देना चाहिए, जिसके लिए हमारी लैंडफिल्स डिजाइन की गई थी. तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम सिर्फ 10% ऑफ हमारा कूड़ा देंगे तो शायद वो लैंडफिल जो हमारी डिजाइन करी गई है दैट वुड लास्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, बिकॉज उसको सही तरीके से यूज किया जा रहा है जो एक्चुअल में वो बनाई गई है जिस चीज के लिए. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे रिसाइकल्ड है, विच इज ऑल्सो बिग लिस्ट, जो हमारा 20% वेस्ट है जिसमें पेपर आता है, मटेरियल्स है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, मेटल है, ये सब रिसाइक्लेबल्स हैं. प्लास्टिक्स हैं अलग अलग तरीके के जो बहुत सारे रिसाइक्लेबल्स हैं, तो ये उसमें आते हैं. और अगर आप सिर्फ ये देंगे तो वेस्ट पिकर्स मुझे लगता है दे विल बी एबल टू डू मच बेटर जॉब और वो इससे अर्न भी कर सकते हैं. दे विल ऑल्सो बी एबल टू गेट अ डिसेंट लाइवलीहुड थ्रू दिस. अगर आप उनको सेग्रीगेटेड देते हैं. अगर आपको उनको नहीं देना तो आप अपने लोकल स्क्रैप डीलर को दीजिए. They will also, and you can also involve your kids into it. They will also fetch some money through this. This will be exciting for them. वो एक साइड पॉकेट मनी की तरह हो सकता है, एक हॉबी हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, और इसी के थ्रू वो वेस्ट को समझेंगे भी. They will understand segregation and importance of materials also. तो वेस्ट पिकर्स इसमें जो आपके स्क्रैप डीलर जो हमारे यहाँ पे कबाड़ी वाले होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल यहाँ से खुशी खुशी ले लेंगे. एंड ऑनेस्टली डोंट बार्गेन विद देम. ट्रस्ट मी, अगर वो कुछ भी आपको दे रहे हैं उसके एक्सचेंज में और वो जाके आगे ट्रीट करते तो लेट देम डू इट. तो जैसे कि मैंने बोला कि रिसाइकलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज सिंपली द लास्ट रिजॉर्ट. अगर आप 3 R's की बात करते हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल लास्ट में आता है. तो पहले आपको रिड्यूस करना है. तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन टू have a problem is to not to have the problem at all. तो पहले आप उसको रिड्यूस करेंगे, फिर आप देखेंगे उसमें से क्या रीयूज हो सकता है, और उसके बाद जब आपके पास कुछ भी नहीं ऑप्शन बचता फिर आप उसको रिसाइकलिंग में डालेंगे. सो आई होप दिस आंसर्स दैट क्वेरी कि हमें लैंडफिल्स का क्या करना है. जो हो गया सो हो गया, बट आने वाले टाइम में हमें ऐसा सिस्टम, इतना रोबस्ट सिस्टम चाहिए जो हमारी डिपेंडेंसी खत्म करे लैंडफिल्स पे. क्यों इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा करना है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जबकि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस विद अ बेटर सिस्टम हम उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर सकते हैं. क्यों हमें प्लास्टिक जनरेट भी करना है कि हमें उसको बाद में आगे सोचना पड़े, हमारी एनर्जी, हमारी एफिशिएंसीज जाएं कि हम उसको रिसाइकिल करें या हम उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करें. क्यों ना हम ऐसे सिस्टम्स फॉलो करें जिसमें हमें एट द वेरी फर्स्ट प्लेस वो प्रॉब्लम से जूझना ही ना पड़े. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें ऐसा हमारा एक लाइफस्टाइल क्रिएट हो जो उसे सपोर्ट करे. तो मैं आपको 7 R's के बारे में बताना चाहती हूँ. हमने सबने 3 R's के बारे में सुना है.
before we start this, let's take 5 minutes break. I will, I think काफी लंबा जा रहा है session. I would also give you guys a breather. So I'm stopping. I think we can have a little, it's 11:50 already. So I think let's just finish it only because 11 to 12 का session था, थोड़ा लंबा भी चला गया है. So I'll quickly give you a brief for the 7 hours. और उसके बाद we can have a quick Q&A round. Yeah, sure. Questions we'll take after this. It's almost done. ठीक है? Yeah. So Sonal, we will be taking your question after that 7 hours brief. हाँ. So let's have a patience. Yeah. तो आपने 3 hours के बारे में सुना होगा. अब जो मैं आपको tools बता रही हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ, जो बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी एंथुसियास्ट जो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल यूज करना चाहते हैं वो इसमें करते हैं, ताकि मैं क्यों अपने कूड़े के डिब्बे से डील करूं जब मुझे पता है कि आई कैन लिव मच स्मार्टर और मेरा वो कूड़े का डिब्बा क्रिएट ही नहीं होगा, राइट? मैं क्यों लैंडफिल क्रिएट करूं जब मुझे पता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल में ये थोड़े से करेक्शंस करूं तो मुझे वो क्रिएट ही नहीं होगा. तो लेट्स सी 7 hours. तो फर्स्ट इज रिफ्यूज. रिफ्यूज इज कि जब आपके पास कोई सामान आ रहा है, अगर आपको लगता है कि वो प्लास्टिक है, वो इस तरीके की चीज है जिसके बिना आपका काम चल सकता है, तो आप उसको ले ही मत. दैट इज द बेस्ट वे कि यू आर नॉट लर्न टू से नो टू प्लास्टिक, से नो टू स्ट्रॉज, से नो टू प्लास्टिक बॉटल्स, कैरी योर ओन प्लास्टिक. ये आपने सब जगह सुना है. दिस इज द बेस्ट वे वेयर यू रिफ्यूज. No to freebies. The things that you don't need, just don't take them. That is the first thing. These 7 hours are the real mantras for you to live sustainably. So if you want, you can also make a note of that. The first R is refuse. Okay. So this is a green fact. अगर जो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स की कंजम्पशन है, if you will put them all in one line, तो एक्चुअली अर्थ के 4 चक्कर लग सकते हैं. So you can imagine the amount of plastic bottles. जबकि plastic bottle क्या है? Water is everywhere. We can just carry your own bottle. मेरे को याद भी नहीं मैंने लास्ट कब प्लास्टिक की बॉटल खरीदी थी पानी पीने के लिए. It's been so many years. I always carry my bottle. और अगर नहीं भी है तो जो पानी आजकल हर जगह पे फिल्टर होते हैं, मैं सिंपल फिल्टर का पानी पी लेती हूँ वहां से लेके. फिर नेक्स्ट R is reduce. तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज जो आप अभी करेंटली जो भी आपका कंजम्पशन है उसको कम करना. इफ यूर बाइंग 5, टेक 3. सी इज इट ओके, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट इन लेस. क्या हम उसका नंबर किसी एक्सटेंड में कम कर सकते हैं? कैन इट बी स्मॉलर इन साइज, इन अमाउंट और इन नंबर? क्या हम किसी तरह उसको कम कर सकते हैं? इफ यू आर परचेजिंग एनीथिंग देन डोंट, अगर आप ऐसी कोई चीजें ले रहे जो आप नहीं ज्यादा यूज कर सकते तो वो आप रिड्यूस कर सकते हैं. फिर आप अपना जो while ordering food और while eating you can make sure कि आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं. और जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो keep the lights off, keep the water taps closed. इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपकी कंजम्पशन को ट्रिमेंडसली, आपके कार्बन फुटप्रिंट को बहुत अच्छे से कम कर सकती है. तो ये हमारी यंगर जेनरेशन के लिए ज्यादा है. मुझे लगता है हमारी ओल्डर जेनरेशन जो है हमेशा से इन चीजों का ध्यान रखती आई है. आवर मदर्स, आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक कि जी ये यूज नहीं हो रहा है, ये लाइट्स बंद करो, ये पानी बह रहा है उसको बंद करो. तो ये सब मुझे लगता है यंगर जेनरेशन, आई एम सॉरी, पर हमें सीखने की ज्यादा जरूरी है. तो रिड्यूसिंग इज बेस्ट वे. अगेन हमारे घरों में से 30% जो है पेपर, कार्डबोर्ड, इस तरीके का कूड़ा निकलता है जो कि सारा रिसाइक्लेबल है. देन थर्ड इज रीयूज. सो व्हाटएवर यू कैन जस्ट रीयूज दैट. या तो बहुत सारा ऐसा हमारा सामान होता है जो एक्चुअली में बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, स्पेशली नाउअडेज व्हेन वी शॉप सो मच. ऐसा बहुत सारा मटेरियल आता है जो हम लेते हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है और हम उसे फेंक देते हैं, राइट? या फिर हमें वो नहीं चाहिए होता है तो हम उसे फेंक देते हैं. हम ये नहीं सोचते कि मे बी ये किसी और के काम आ सकता है, राइट? Our trash can actually be someone else's treasure. So if there are any toys, any other bags or any other things, clothes, ये आप देखिए कि if you can give it to someone else, which of course is going to be pretty bad for the environment अगर आप उसको फेंक देते हैं. तो आप टॉयज, बुक्स और
जो भी चीजें हैं जो रीयूजेबल हैं, देखिए अगर आपके आसपास में भी देयर आर सो मेनी थ्रिफ्ट स्टोर्स नाउअडेज जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड चीजें मिलती है, आप उनको दे दो, वो खरीदते भी हैं, आपको कुछ ना कुछ शॉपिंग वाउचर्स या फिर उसके बदले में पैसे मिलते हैं। स्वॉपिंग होती है, आजकल स्वॉप स्टोर्स हैं, ये मुझे लगता है यंगर जनरेशन को ज्यादा पता होगा कि स्वॉप स्टोर्स है, थ्रिफ्ट स्टोर्स है, जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने होते, वहां पे बार्टर चलता है, सिंपल, आप अपनी चीजें लेके जाओ और दूसरी चीजें लेके, इट गेट्स यू चेंज ऑल्सो। तो बॉटल्स वगैरह रीयूजेबल होती हैं, आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेनर्स, टेक अवे बॉक्सेस, ये सब रीयूज हो सकता है। Yeah, so the green factory takes 17 trees to make 1 ton of paper. हम आज के टाइम पे सोच रहे होते हैं कि प्लास्टिक रिप्लेस करो, यूज पेपर, इट्स इको फ्रेंडली, बट पेपर आ कहाँ से रहा है? इट इज कमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो इट डजंट मीन कि अगर आप प्लास्टिक फ्री हैं तो इट इज इको फ्रेंडली। सो व्हाटएवर मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, जस्ट नो कि वो एक किसी ना किसी नेचुरल रिसोर्स से आ रहा है, इट इज टेकिंग एनर्जी, इट इज टेकिंग कंज्यूमिंग आवर रिसोर्सेज। तो कीप इट मिनिमाइज, कीप इट टू योर नीड्स। देन रिपेयरिंग, ये हमारी बिल्कुल खत्म होती जा रही है हैबिट कि हम एक टाइम पे अपनी चीजें रिपेयर करते थे फॉर द रीजन हमें लगता है कि बहुत सस्ते में मिल जाएगा, नया इतने में आ जाएगा, वाई टू गेट रिपेयर्ड, वाई टू पुट सम टाइम एंड मनी, जब इतने में हो जाएगा। मगर आप ये देखिए कि अगर वो रिपेयर हो सकता है, देन गो फॉर दैट, दैट इज बेटर फॉर द एनवायरमेंट। बिकॉज अगर आप नया खरीदते हैं तो डबल चीज है, आप डबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एक, आप नया खरीद रहे हैं, नए रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। दूसरा, जो अभी चीज ठीक हो सकती थी वो पड़ी हुई है और वो फिक गई है, दैट इज ऑल्सो डबल लॉस। तो इट्स बेटर कि आप अगर वो चीज फिक्सेबल है तो यू डू दैट। तो अगर चेयर टूटी है तो उसको फिक्स करिए, ब्रिंग बैक दोज रिपेयरिंग एस्पेक्ट्स टू योर लाइफ, जहाँ पे हम चीजें रिपेयर करते थे पहले और उसको फिक्स करके फिर से दोबारा यूज करते थे, एंड इट विल सेव मनी ऑल्सो। रीपर्पसिंग इज अनदर क्रिएटिव रीयूज। बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आता है, हॉबीज होती हैं, इट इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। आई डू दैट time where we are repurposing old things into new stuff, bottles into planters and vases, and t-shirts into bags, and bottle caps से accessories बनाना। आजकल जो है इतना सारा हॉबीज का और DIY का ट्रेंड है, आप घर में अपनी पुरानी चीजों से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो repurposing is also a great tool to handle that waste. So you would know that 100% of your clothes are actually recyclable. We at Use Me Works recycle the old clothes into bags, packaging, decorations, rugs, quilts, curtains, toys, tableware, eco-gifting. There's a lot more, like me and the women that I work with. We recycle all the clothes. If you want, you can also contact us to recycle your clothes. usemeworks.com is the website. Then it comes to recyclables. So all the recyclables जो हमने जिनके बारे में पढ़ा, तो रिसाइकल जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर भी रिसाइकल एंड में आया है। सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट रिसाइकलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज अ मेयर लास्ट रिजॉर्ट। कि जब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट फॉर द इको ब्रिक्स ऑल्सो दैट इको ब्रिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो अगर आप इको ब्रिक्स बनाना चाहते तो उससे पहले आप ये सारे आर्ट्स को अपने लाइफ में लाइए। उसके बाद में जब सब करने के बाद जो थोड़ा बहुत जो वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट आप जनरेट करते हैं, वो इको ब्रिक्स बनाइए। बिकॉज अल्टीमेटली यू सी दैट इज ऑल्सो कमिंग इनटू द एनवायरनमेंट एंड दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इको ब्रिक इज जस्ट द बॉक्स which is keeping the plastic intact. It is not getting treated. It will still be there for hundreds of years. So EcoBrick was designed to tackle the last bit of plastic that we can't recycle in the end. So know that EcoBrick is your last tool, not the first कि आप endlessly plastic waste generate करे जा रहे हैं और फिर आप उसे EcoBrick में use कर रहे हैं. That is never the intention. Okay. So here is the final जो हमने अभी recyclables पढ़े, that is again the list, जिसमें आपका पेपर्स अलग है, प्लास्टिक में अलग हो जाता है, मेटल में और ग्लास में। ये आपके 4 रिसाइक्लेबल्स हैं जो आराम से अगर आप निकाल के क्लीन करके अपने पास रखें तो योर वेस्ट पिकर और योर स्क्रैप डीलर, कबाड़ी वाला,
he would be very happy to take them. You can also ask them कि वो क्या ले सकते हैं और क्या नहीं. Glass can be recycled endlessly. उसकी quality कभी खराब नहीं होती. Glass पूरी तरह recycle किया जा सकता है. Okay, the last is rot, जिसमें हमने composting के बारे में पढ़ा. That is the last tool where all the kitchen waste goes into composting. So these are the 7 R's. And imagine, अगर 7 R's, 6.7 billion people are using it, हमारा waste जो है कम आएगा, and eventually हमारा जो our bins will be empty. So imagine a world like that where everybody is living up to these mantras, and everybody is treating it. I think this we can skip for now. And this is it. So this was the recap where these are the 7 R's that we studied about. And आप इसको याद रख सकते हैं, आप इसके बारे में सोचिए. And मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि don't think कि आप overnight सब कुछ कर पाएंगे. It's not possible. तो pick one thing every month. आप एक चीज करिए कि जी मैं इस महीने ये करूंगा, और फिर आपके अगर लाइफस्टाइल में वो अच्छे से सीपन हो जाती है वो हैबिट, इसके बाद आप दूसरी चीजें ऐड ऑन करें. एंड नो जजमेंट, no criticism at all. That is the mantra of entering into sustainable lifestyle. अगर आप एक्चुअली में किसी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप किसी और को कंपेयर ना करें, आप किसी और की निंदा ना करें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. अगर हमने कुछ सीखा है तो आप उसको अपनी लाइफ में लाइए, and let it be a harmonious process for the society, not another excuse to actually criticize each other. तो आप सबकी अपनी अपनी जर्नी है. आप जहां पर हैं वो आपके लिए अच्छा है, और जिसकी जहां पर है वहां पर अच्छा है. जहां पर मैं हूँ मेरी जर्नी मेरे लिए अच्छी है. Let it be like that and let's help each other. Let's not criticize. तो जो भी आज हमने पढ़ा है ये कोई एक कंपटीशन या कोई रेस नहीं है. ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए है. तो आप जितना कर सकते हैं आप वो करें. थैंक यू सो मच. बहुत ही पेशेंटली सबने सेशन अटेंड किया है. नाउ वी कैन ओपन टू क्वेश्चंस. Yeah, thank you so much, Ms. Meenakshi. We are truly delighted to have you with us. Your teachings were really inspired and enlightened us for our future. Thank you for this session. It was really good, and we just got enlightenment here. So everyone is requested कि वो questions पूछ सकते हैं, but please जो questions हैं वो कचरे पे चर्चा, जो हमारा आज का main topic है, उस पे ही रहे. Yeah, thank you. I think Sonal was asking some question during the seminar also, so she can go first. Yeah, Sonal? No. Is it out clear? Yes. Great. Anyone else? क्वेश्चन नहीं है. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना, अगर आप कंपोस्टिंग या फिर आप कोई भी अपने घर पे या कम्युनिटी लेवल पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप वो शेयर भी कर सकते हैं. जैसे कि उन्होंने इको ब्रिक्स का और इको की दीवार का शेयर किया. अगर कोई और अपना एक्सपीरियंस या जर्नी शेयर करना चाह रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं. बट मेक श्योर दिस इज रिलेटेड टू जो आज का सेशन है. Yeah, I just see in chat box there was Mr. Satpal. He wanted to say something. Yes, as I was listening, Yeah, you are audible. the whole program is organized by you. You have taken each and everything from A to Z. I've been serving in MCD as a sanitation superintendent and in West Zone. I don't know whether you are carrying such type of campaign in other zones or in all over Delhi. As far as West Zone is concerned, we have started, and I request to Dr. Poonam also. Perhaps I join your this session a little later. Whatever you have discussed, I don't know initially. But I'll state it that in as far as West Zone is concerned, we have made more than 30 societies zero waste societies. Either they are community composting, they are doing,
or individually they are doing, but more than 30. It is known as a new initiative, and our main motto, as Dr. Poonam also stating after each and every point, we are having a one motto only, to provide eco-friendly environment to the young generation as well as to the grand generation, which is coming generation. So it is my main motto, and I'll state it further. At this time, we are taking it as a compromise as far as NCD is concerned. Otherwise, we are persuading the people, we are making the seminars, even RWA's meeting are being taken by DC sir, AC sir, I myself also. And we call some RWAs, members, secretaries, presidents, like this. And as far as 3R seminars, you have, or Dr. Meenakshi, she has already explained each and everything. मैं एक उदाहरण दूंगा इसमें, अगर आप लोग सारे सुन रहे हैं, जो हमारे यहाँ रसोई में एक मसालदानी होती है, जिसमें बॉक्स होते हैं काफी सारे, और अगर हम उनको मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। हम अलग अलग क्यों करते हैं, अभी डॉक्टर ने बताया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मेरे हाथ में पेन, और इस पेन के ये दो पार्ट हैं, एक को मैं वेट मान लेता हूँ, एक को ड्राई मान लेता हूँ, ये छोटा सा काम है, और इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ तो इट वुड बिकम ए वेस्ट, ये वेस्ट बन जाएगा। क्योंकि नाइदर हम जब तक सेग्रीगेट नहीं करेंगे, वी वुड हैव टू, एज यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय डॉक्टर मीनाक्षी, हमें सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आने वाली स्थिति, आज हमारे पास एज फॉर एज, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि 60% हम उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है उसको, जैसे भी हमारा रैग पिकर होता है, जो इनफॉर्मल रैग पिकर होता है, जो उसको ड्राई देते हैं वो कहाँ बेचता है, उससे उसकी रोजी भी चलती है और वो बिक भी जाता है। थर्डली, जो हजार्डस वेस्ट है उसका डॉक्टर ने बता दिया कि या तो हम कोई नियर बाई हॉस्पिटल है या कोई ऐसा है तो वहाँ इंसिनरेटर होता है और वो बर्न करते हैं उसके अंदर। तो एज फार एज द बेसिक थिंग इज कि वी हैव टू सेग्रीगेट, हमें सेग्रीगेट करना है। कंपोस्टिंग के लिए मैं आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे यहाँ कई, एक इफ्का भी है हमारे डॉक्टर राधा जी, इफ्का इंडियन इफ्का से है, मैं बस 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के, क्योंकि इसलिए और कई एनजीओ हमारे यहाँ काम कर रही हैं, ITC वाओ। अगर आपको, मेरा नंबर है इसमें, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर स्पीकर, प्लीज म्यूट एवरीवन बारिंग सतपाल जी, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड। मैं मानता हूँ कि सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन लंबा होना ही था, क्योंकि हमारा बेसिकली हमें सेग्रीगेशन एट सोर्स करना ही पड़ेगा। हम अपने घर में ही सेग्रीगेट करेंगे, छोटा सा काम है, 2 बकेट रखेंगे और एक में गीला होगा, एक में सूखा होगा। और अगर ये एरोबिन्स हम लगा रहे हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं एरोबिन्स लगाती हैं सोसाइटी के अंदर ही, उसको ट्रेन करते हैं। एरोबिन्स की कीमत ज्यादा नहीं है, 35,000 रुपये होती है। और अगर कोई आदमी गूगल पे भी जाएगा तो ही कैन ट्रेस कहाँ मिलता है, कैसे होता है। हाँ, अगर वो हमारे पास आता है, मेरा नंबर भी इसमें है, अगर नहीं होगा तो मैं बता भी दूंगा, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कोई सोसाइटी है, कोई ऐसी लोकेलिटी है जिसमें 50 मकान है, 200 मकान है, उनको हम क्या करेंगे, ट्रेन भी करेंगे और वहाँ एरोबिन्स भी लगाएंगे, जिससे कि उनको दिक्कत नहीं हो। तो मैं इतना ही कहूंगा कि एट सोर्स हमें सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन कमिंग डेज MCD would take action also
अंडर SWM रूल्स। ये रूल्स 2016 में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि हम सारे के सारे प्राइमा फेसी वी आर द सिटीजन ऑफ दिल्ली और इंडिया, तो हम सारे थोड़ा लूज कर गए। और ये बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर मीनाक्षी ने कि हमारा कितनी कॉस्ट आती है। एक तो नुकसान होता है, एक छोटा सा SUP सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, हम सीजर भी कर रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान कितना होता है आप सबको पता है। इट कॉजेज कैंसर, इट कॉजेज कैंसर। तो अगर हम इसको वहां ले जाते हैं, कोई आदमी नहीं करते हैं, मैं नहीं करता हूं, और इट वुड बी कैरिड ऑन SLF सैनिटरी लैंडफिल पे ले जाते हैं, वहां भी क्या होता है, वो ना गलती है ना सड़ती। तो ऐसे आइटमों के लिए SWM बना दिया गया, रूल्स है उसका। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर किसी को कोई सोसाइटी है या कुछ अपना एक बंच ऑफ हाउसेस, और ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आई एम गेटिंग इट फिनिश्ड, वे ऑफ करता हूँ 2 सेकंड में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मीनाक्षी से कि अगर कोई इसमें और ऐसा है इश्यू, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू सेंड योर नंबर 2 सो दैट, क्योंकि काफी सारी NGOs इसमें काम कर रही हैं। इसमें अगर किसी का कोई क्वेरीज है तो यू मे मूव फर्दर। थैंक्स। थैंक यू सतपाल जी, आपने जो भी चीजें शेयर करी हैं वो बहुत अच्छी हैं, और आप खुद गवर्नमेंट में MCD में काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा क्लोजली किसी ने नहीं देखा है पूरा इशू, और आपने बहुत अच्छा रिकैप किया। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आप बता रहे हैं, जो एरियाज हैं जो जीरो वेस्ट हैं, अगर आप उनके एरियाज के बारे में कभी बताएंगे तो हम वहाँ पे कभी विजिट कर सकते हैं, ताकि हम उनसे देख सकें, मे बी उनसे लर्न कर सकते हैं कि कैसे एज अ सोसाइटी इट कैन गो जीरो वेस्ट। तो हम एक टूर कर सकते हैं कभी आगे, जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं। Right. Extremely right. I'll provide you some mobile numbers also. ठीक है। Yeah, anyone else? Mr. Jaspal, you can go ahead. Yeah, Mr. Jaspal. May I say something? Yeah, Yes, yeah. please. Mr. Jaspal, you're muted. Ma'am. Yeah. You're audible from the start. I think we should go with Dr. Poonam first because she's starting. Mr. Jaspal is not responding, so we can go ahead with Ms. Poonam first. Ms. Poonam, you may start. Mr. Jaspal, you are muted. दिशा, आप अनम्यूट कर दीजिए। Yeah, hi. Am I audible? Yes, Nisha, you are. So let's go with Mr. Jaspal. He's now unmuted. Yeah. जी मैम, ये मैं कह रहा था कि जब तक MCD जैसे जो इस कार्य में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो ही कार्य अपना पूरे नहीं करेंगे तब तक दूसरे नहीं कर पाएंगे। इस यहाँ की जो जनता है वही चीज को नहीं समझ पा, वो सिर्फ रिड्यूस कर सकती है और कबाड़ी वाले को ऑलरेडी बेचते हैं, मगर जैसे जो पोश एरिया है वो सब ये चीजें नहीं करते। छोटे एरिया फिर भी लोग अपनी पॉकेट मनी के लिए कबाड़ी वालों को बेचते हैं, बट उल्टा वो जो गार्बेज है, जो 60% जो रिड्यूस हो सकता है उसको नहीं करते। उसको लेने के लिए MCD इन्वॉल्व, उनको कंप्लेंट करने पे गाड़ी नहीं आता, इधर प्लाटों में फेंकते हैं कूड़ा, जलाते भी हैं कूड़ा, बट उसमें MCD कुछ नहीं करती। मैंने देखा, मेरे सामने ही पीछे गायें वगैरह आती हैं, पूरा एयरफोन की लीड खा जाती है, मेरे सामने ही होता है, बट वो कुछ नहीं होता। कंप्लेंट करते रहो और कोई एक्शन नहीं लेता। जसपाल जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का ये सेशन हम एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इसलिए रखा है कि हम एट एन इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, और मैं उसी में ही आपकी मदद कर सकती हूँ। तो मैम बता रहा था, हम सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आम जो पब्लिक को, जहां तक मुझे लगता है, वो सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं और कबाड़ी वालों को दे सकते हैं। बाकी जैसे खाद वगैरह बनाना और ये सिटी के लिए मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है और ना इतनी स्पेस है। तो फिर इसीलिए ये जो हमारा जो अभी सिचुएशन है वो इसीलिए है ना, क्योंकि हमें अगर हमारी हेल्थ
हमारी एयर क्वालिटी, हमारे लाइफ के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर जब हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो कोई और क्यों करेगा हमारे लिए? हमें टाइम जब तक वो मेरे कहने का मतलब जब तक कोई गवर्नमेंट इसमें सख्ती से इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वो टाइम नहीं निकालेंगे। मगर मैं टाइम तो आपको है ये बट कहने की देना नहीं कोशिश चाहते। कर रही हूँ कि जब तक हम खुद ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप गवर्नमेंट को भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नहीं, मैंने जैसे मैं होना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना मैम। मैं जब तक कोई पनिशमेंट, जैसे अब गाड़ी लिखा है गीला और सूखा कूड़ा अलग से, पर वो गाड़ी वाला भी उसपे कोई इन्वॉल्व नहीं, उसपे ना लेके जाए उनका कूड़ा, लेके जाते हैं सब उस और जिनसे लेना है कूड़ा उससे लेते हैं, दुकान वालों से सीधा लेदर के वो अवशेष, कपड़े की दुकानों से सब भर के उसमें ले जाते हैं, पैसा मिलता है और ले जाते हैं। मिस्टर जसपाल, थैंक यू सो मच, आपका व्यू हमारे लिए मैटर करता है, बट द थिंग इज आज का जो टॉपिक है कचरे पे चर्चा, इसमें हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, बट द थिंग इज वी कांट ब्लेम समवन। सबसे पहले हम खुद पे ध्यान रखेंगे ना कि हम कैसी चीजें सही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जसपाल, अगर बिना किसी पनिशमेंट के अगर पब्लिक काम करेगी तो वो काम ज्यादा लंबे टाइम तक पब्लिक करेगी। जैसे हम अपने बच्चों में, जैसे मैम ने बोला, आदत डालें, उनको ऐसी एक्टिविटीज कराएं कि वो अपने आप कूड़े को अलग करें। आदत डाली थी, मैंने देखा एमसीडी ने कूड़ा वगैरह के डस्टबिन वगैरह लगाया और उनको सब तोड़ के ले गए। यहाँ इंडिया के लोग, मैंने दिल्ली में ये देखा, मैम तोड़ के ही ले गए, उनको जला दिया, ले गए, डस्टबिन ही ले गए, और कूड़ा डालना तो दूर की बात। मैं वही बताना चाहता हूँ कि थोड़ी हैबिट नहीं है। जिन पे सख्त कानून बनाए गए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें, क्या क्राइम्स नहीं हो रहे हैं? फिर भी हो रहे हैं ना क्राइम्स, तो हो रहे हैं। बट थिंग इज कि आप कब तक खुद पे कंट्रोल करके काम कर सकते हैं? सरकार कितने टाइम तक उसको बार बार डस्टबिन को लगा सकती है जब आप उखाड़ के ले जाओगे तो? वहाँ पे कोई गार्ड या कोई ऐसी चीजें खड़ी कर सकते, ध्यान और कुछ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। आप क्या मैंने देखा। सजेस्ट करते हैं? थैंक यू। सो सोनल ने हैंड रेज किया था, सोनल। अच्छा फैलता है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? किसे? थॉमस कितने सारे कचरा पड़े। क्या आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी क्वेरी। हाँ जी सोनल, आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट पुट इन चैट बॉक्स, फिर हम वहां से आपकी क्वेरी उठा लेंगे। या मिस्टर कमल हैव आल्सो रेज्ड हैंड। हेलो मैम, मैं कमल कनौजिया, पर्यावरण मित्र निहाल विहार से। हेलो। हाँ जी, हम सुन सकते हैं, आप बोलिए। मैम मैं यहाँ रहता हूँ, ये बिल्कुल कच्ची कॉलोनी है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है खाना वेस्ट की। लोग खाना जो भी बच जाता है थोड़ा बोड़ा, वो सारा घरों के बाहर फेंक देते हैं, और वो खाना, कई तरह का खाना मिलके उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो गंदगी बन जाती है, और उसका कोई समाधान पिछले कई सालों से कोई भी नहीं कर पा रहा है। इसका कुछ सुझाव है आपके पास? इसमें हैरानी की बात है कि आप कह रहे हैं कि आप कच्ची कॉलोनी में और वहां पे रहते हैं और वहां पे खाना वेस्ट होता है। हाँ जी। तो आप इसमें पहली बात तो ये बहुत ही गलत चीज है कि यहाँ पे पहली बात तो खाना जैसी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और जहाँ रिसोर्सेज इतने कम है वहां पर अगर लोग खाना वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज है। तो आपने आसपास लोगों से बात करी है कि मतलब वो खाना क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैम आसपास के लोगों से क्या बात करेंगे, वो सारे कोई घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, कोई मजदूर है, कोई किसी तरह का है, बस वो लोग स्वाद के कारण उस खाने को फेंक देते हैं और वो खाना गंदगी का रूप ले लेता है। प्रॉब्लम है, हमें खाना गंदगी का रूप क्यों ले रहा है, और इस खाने को कमाने के लिए दुनिया क्या कर रही है, पर हमारी किसी भी निगम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हम इस खाने को इकट्ठा करके गौशालाओं तक पहुंचा पाए। ऐसा कोई प्रावधान हो तो। आपके वहां पर आसपास कहीं पे गाय और ये सब नहीं होते जहाँ पे आप उनको बोल सके कि आप वहां पर डालें खाना? मैम वो होते हैं, वो लोग सिर्फ सूखा खाना ही ले जाते हैं,
हाँ जी। मैम बस वही है कि अगर जैसे इंदौर में भी नगर निगम ने ऐसे प्रावधान बना रखे हैं कि खाना जो वेस्ट होता है वो सीधा या तो स्ट्रीट डॉग्स को मिलता है या फिर गाय और इन लोगों को मिल जाता है, पर यहाँ ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। सतपाल जी, आप इसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? अभी डॉक्टर साहब, जैसे मैं दोनों को ले लेता हूँ, इनसे पहले जो हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट है, और इनको भी दोनों को इकट्ठा जवाब दे देता हूँ। पहले कहा, आपने भी सुना कि जी एमसीडी ये करती है, ये नहीं करती, ये करना चाहिए। पहले इंडिविजुअली अगर ये खुद करेंगे, इसमें एक छोटी सी बात जो पहले पार्टिसिपेंट थे हमारे, आई लाइक टू स्टेट कि वो इंडिविजुअली इसको शुरू करें। एमसीडी क्या करे, अभी उन्होंने कहा कि बड़े सख्त रूल होने चाहिए। हम अभी कंप्रोमाइजली इसको टेकअप कर रहे हैं। अदरवाइज रूल तो SWM रूल एज आई स्टेटेड ऑल्सो कि वो बन चुके हैं और फाइन उसमें बहुत ज्यादा है, वो बन चुके हैं 2016। हम अभी उनको थोड़ा लीनियंटली वी आर टेकिंग, MCD is taking leniently. Secondly, now I'm coming to the next participant. ये खाना वेस्ट होता है। पहली बात तो ये अपना एक ग्रुप बना लें 2-4 लोगों का, और उसमें क्योंकि इन्होंने बताया कि निहाल विहार में रहते हैं, मैं मानता हूँ कि कच्ची कॉलोनी, क्योंकि आई नो द कॉलोनीज ऑल्सो, तो इनको एक ग्रुप बना के उसके बाद, क्योंकि हमारे जोन होते हैं, ये नरेला जोन में आता है इनका, और ये मेरा नंबर ले लेंगे यहाँ से चैट बॉक्स से, या मैं इनको गाइड कर दूंगा कि किससे। पहली बात तो प्राइमा फेसी दे वुड हैव टू मेक ए ग्रुप 2-3-4 पीपल। उसके बाद जो भी खाना वेस्ट होता है उनको परसुएशन प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, उनको समझाएं कि ऐसा ना करें। सेकेंडली, माफी चाहूंगा कि आपने कहा जहाँ गाय, क्योंकि गायों को हम अलाउ नहीं करते हैं कि खाना उनको जाए, पता नहीं किस टाइप का खाना होता है, हमें अलाउ नहीं करते, एमसीडी डजंट अलाउ इट। तो इनका एक ही समाधान है कि क्योंकि कच्ची कॉलोनी है, प्राइमा फेसी इनको ग्रुप बनाना पड़ेगा, लोगों को परसुएड करना पड़ेगा। और थर्डली, मैं कहूँगा कि उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो एमसीडी हमेशा हर आदमी के लिए तैयार है, क्योंकि वी आर फुल्ली ड्यूटी रिमेन इन द टच ऑफ पीपल। हम उसमें हेल्प करेंगे जितनी भी हो पाएगी। डॉक्टर, इज क्लियर? मेरे ख्याल से दोनों के लिए क्लियर होगा। ठीक है सतपाल जी। कमल, आई होप अभी आपको ये चीज समझ आई होगी कि आप ऐसे कैसे मैं उनकी सारी बातें बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। अब हम इस मिशन पर शुरू होंगे और जो भी कर पाएंगे उसी तरीके से कोशिश करेंगे। थैंक यू। Okay. So we are having one kind of 30. Yeah, okay. Yeah, that last question is here about Sonal. She is saying about कि रोड पे कितना डस्ट होता है, उसको कैसे कम कर सके। तो सोनल, आप खुद ही कितने यंग हैं कि आप खुद अगर ध्यान रखें कि आप डस्ट नहीं करेंगे, आप कचरा नहीं फेंकेंगे रोड पे, और अपने आसपास के लोगों को भी कहेंगे कि नहीं, अवेयर करेंगे कि नहीं करना है ये सब, सो इट विल बी हैंडल्ड इजीली। थैंक यू मैम। कहने के बाद भी जो लोग हैं वो डस्ट फेंकते हैं, जब भी मैं देखती हूँ लोग, उन लोगों को ये बताया जाए कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। सोनल, इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से सबसे बात करें और वो फ्रेंड जाके अपने पेरेंट्स को बोले, तो अल्टीमेटली पूरी कॉलोनी अपने आप डस्ट फ्री हो जाएगी, पेरेंट्स अगर अवेयर हो जाएंगे।
और अगर आप खुद ऐसा कोई सेशन चला रहे हैं कि जिसमें आप और आपके फ्रेंड्स मिलके वो सब साफ करें, तो आसपास के लोग भी इंस्पायर होंगे कि देखो बच्चे इतना काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अभी आपने सेशन समझा है, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है, तो आप कोशिश करें कि वो आप अपनी लाइफ में उसको यूज करें, और आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो आपके आसपास, जो आपके लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स हैं, उनको आपको शेयर करें और उसके बाद उनको टाइम दें उसको यूज करने का और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने का। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है या कोई भी ब्लेम गेम नहीं करना है, हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, और उसके बाद जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेंगे उससे आपको ऑलरेडी बड़ा बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि आसपास भी आपके लोगों में चेंज आ जाएगा। तो आप इसको जो है आगे अपनी लाइफ में आप यूज करें। तो let's end the session. जिसको भी आज का सेशन पसंद आया हो और वो पर्यावरण मित्र का जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा उसे ज्वाइन करना चाहता है, वो प्लीज मिस कॉल दें एक नंबर पे 8448441758। मिस कॉल देने से आप पर्यावरण मित्र की जो मुहिम है उससे जुड़ सकते हैं। मैं ये नंबर चैट बॉक्स में भी डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। थैंक यू। Thank you everyone. Thank you Ms. Meenakshi. Thank you everyone. All the best.